میں خوش ہوا جب وہ مجھ سے کہنے لگے کہ آؤ یہوہ کے گھر چلیں۔ ہم خدا کے گھر میں ہیں، خدا کی بارگاہ میں ہیں، خدا ہمارے ساتھ پیار کرتا ہے اور ہم ہمیشہ خدا ان کی تعظیم اور شکر گزاری کرتے ہیں۔ آج میں جس موضوع پر کلام سنانا چاہتا ہوں اس کا عنوان ہے ایماندار گھرانے خدا کی نظر میں ہیں۔ میرے ساتھ کہیں، ایماندار گھرانے خدا کی نظر میں ہیں۔ آمین۔ اچھا ٹاپک ہے۔ کیا ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ایماندار گھرانے ہیں؟ خدا کا کلام اس کے بارے میں کیا بتاتا ہے؟ خدا ایماندار گھرانوں پر نگاہ کرتا ہے، ایماندار گھرانوں کی طرف دیکھتا ہے۔ امثال کی کتاب میں لکھا ہے ایماندار جو ہیں وہ جب دعا کرتے ہیں تو خدا کے کان ایمانداروں کی دعا کی طرف لگے رہتے ہیں، اور جب ایماندار اسے پکارتے ہیں یعنی خدا کو تو وہ جواب دیتا ہے۔ اس دنیا میں خدا تو ایک ہی ہے، لیکن ابلیس نے بھی اپنے آپ کو خدا سے اونچا لے جانے کی کوشش کی اور وہ بھی اپنے آپ کو خدا کہتا ہے۔ تو ہمیں ایک تو دنیا کا خدا اور ایک وہ خدا جو اس کائنات کو چلا رہا ہے وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ جب ہم پیدائش کی کتاب پڑھتے ہیں تو ابلیس جو تھا اس نے ہوا کی طرف نگاہ کی، موقع ڈھونڈا اور دیکھا کہ وہ اکیلی ہے، اور پھر موقع پا کر اس پر وار کیا اور پھر اس کو یعنی خاندان کو گرانے میں کامیاب ہو گیا۔ کلام مقدس اس کے بارے میں کیا بتاتا ہے؟ ہم خدا کے کلام میں سے دیکھتے ہیں پیدائش 2 باب کی 24 اور 25 آیت۔ اس واسطے مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا اور وہ ایک تن ہوں گے، اور آدم اور اس کی بیوی دونوں ننگے تھے اور شرماتے نہ تھے۔ ایک گھرانہ ہمیں نظر آتا ہے پیدائش کی کتاب میں، اور یہ سب سے پہلا گھرانہ ہے جس نے اس دنیا میں قدم رکھا۔ خدا نے اس گھرانے کو بنایا اور پھر اس گھرانے کو برکت دی اور کہا کہ پھلو بڑھو اور زمین کو معمور و محکوم کرو۔ خدا کی بلیسنگ، خدا کا مسا اور خدا کی حضوری اس گھرانے کے اوپر تھی، اور خدا ٹھنڈے وقت میں آ کر اس گھرانے کے ساتھ بات چیت کرتا اور رفاقت رکھتا اور ایک دوسرے کے ساتھ رفاقت قائم رہتی۔ اور ہم کلام مقدس میں دیکھتے ہیں کہ یہ گھرانہ جس کو خدا نے برکت دی تھی، خدا نے اپنے لیے انہیں چنا تھا، اور جب یہ گھرانہ گناہ میں گر گیا تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ گناہ نے اس دنیا میں وجود لیا، اور انہوں نے جب اس بات کو دیکھا، جب وہ گناہ میں گر گئے تو پھر کلام مقدس بیان کرتا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو اس بات کے لیے جب ننگا پایا تو اس گناہ کو جو ہے انہوں نے جو کیا تھا پھر فیل کیا، محسوس کیا۔ لیکن خدا ہمیں ہمیشہ دیکھتا ہے، اور ہم کلام مقدس میں بیان کرتے ہیں،
कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि खुदा ने इसलिए इंसान को, घराने को नहीं बनाया था कि वो गुनाह में गिर जाए, बल्कि खुदा ने कहा था कि फलो बढ़ो और ज़मीन को मामूरो माकूम करो। हम इसलिए बनाए गए हैं, मैं और आप एक घराना रखते हैं, हम अपने अपने घराने को अपने सामने रखें और फिर देखें कि खुदा जो है वो आपको देख रहा है या इब्लीस आपको देख रहा है। अगर कोई रखना है तो उसे बंद करने की ज़रूरत है, और उस रखने को बंद करते हुए हमें अपने बच्चों को, अपने ख़ानदान को खुदा के सामने लाने की ज़रूरत है। घराने का सरबराह कौन होता है जी? बाप होता है। यहाँ पे बाप, मर्द और औरत की बात की गई है। और अगर एक घर का मालिक मर्द है तो जो उसकी बीवी है वो क्या है? वो मालकन है। खुदा ने इंसान को, मर्द को एक जीवन साथी दिया और फिर एक घराना तश्कील पा जाता है। हम जब खुदा के खादिम किसी भी मर्द और औरत का निकाह पढ़ते हैं, उसके सर पर, दोनों के सर पर हाथ रखते हैं तो उन्हें मियाँ बीवी करार देते हैं, तो फिर एक घराना तश्कील पाता है। कलाम मुक़द्दस इस बात का गवाह है कि जब घराना तश्कील पाता है तो घराने का जो सरबराह होता है वो मर्द होता है। मर्द अगर एक घर का मालिक है तो उसकी बीवी मालकन है। उसका दर्जा छोटा नहीं है या थोड़ा नहीं है, उसका दर्जा भी बहुत बड़ा है। और एक बीवी के मुतल्लिक लिखा है, पास्टर डेनियल खादिम साहब ने अपनी एक किताब में लिखा कि जो बीवी है मर्द की, वो जवानी में उसकी महबूबा है, दरमियान में वो उसकी जीवन साथी है, और फिर बुढ़ापे में वो उसकी मददगार है। इस तरह घराना जो है वो आगे बढ़ता है। और फिर वही वादा जो खुदा ने पैदाइश की किताब में इंसान के साथ किया कि फलो बढ़ो और ज़मीन को मामूरो माकूम करो। तो घराने में 3 अफराद भी हो सकते हैं। कई ऐसे घराने देखे हैं जिनका एक ही बेटा होता है या एक ही बेटी होती है। कई होते हैं ख़ानदान, उनकी 2 बेटियां हैं, 2 बेटे होते हैं। कईयों के 3 बेटे और 2 बेटियां होती हैं। कईयों के बहुत बड़े घराने भी हैं। मेरे एक मामू हैं, उसके 7 बेटे और 6 बेटियां हैं, 13 उसके बच्चे और 2 मियाँ बीवी, कितने हो गए? 15। ये भी एक घराना है। तो घराने जो हैं बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, लेकिन हमें देखना ये है कि क्या मेरा और आपका घराना खुदा की नज़र में है या नहीं। आइए हम पैदाइश की किताब, उसका 7वां बाब पहली आयत से खुदा के कलाम में लिखा है, और खुदावंद ने नूह से कहा कि तू अपने पूरे ख़ानदान के साथ कश्ती में आ, क्योंकि मैंने तुझी को अपने सामने इस ज़माने में रास्तबाज देखा है। यहाँ पे ख़ानदान की बात हो रही है। यहाँ पे खुदा मूसा के वसीले मेरे और आपके साथ बात कर रहा है। खुदा ने नूह से कहा कि तू अपने पूरे ख़ानदान के साथ कश्ती में आ, क्योंकि मैंने तुझी को अपने सामने इस दुनिया में रास्तबाज देखा है। नूह के कितने बेटे थे? 3 बेटे थे, 2 वो मियाँ बीवी थे, और फिर 3 जो बेटे थे उनकी 3 बीवी। तो टोटल कितनी जानें थीं? 8 जानें थीं। और उस वक्त गुनाह का इतना ज़ोर था कि पूरी दुनिया गुनाह की लपेट में आ गई। खुदा देख रहा था। खुदा पूरी दुनिया पर, खुदा की नज़र पूरी दुनिया पर सैर करती है। खुदा आज मुझे और आपको भी देख रहा है। क्या मैं और आप नूह की तरह हैं? क्या खुदा मुझे और आपको, मेरे और आपके ख़ानदान को कह सके, आपके
ख़ानदान के सरबराह को ये कह सके कि मैंने तुझी ही को इस ज़माने में रास्तबाज देखा है। 120 साल तक नूह मुनादी करता रहा, कलाम सुनाता रहा, साथ साथ वो कश्ती भी बनाता रहा कि तौबा कर लो, खुदा अपने अज़ाब को नाजिल करने को है, खुदा आपको नेस्तो नाबूद कर देगा, खुदा आपको फना कर डालेगा। लेकिन कलाम की बात, खुदा की आवाज़ की उन्हें समझ नहीं आ रही थी। और फिर एंड पे हम देखते हैं कि सारी दुनिया पानी के तूफान से ख़त्म हो गई। कलाम मुक़द्दस बयान करता है नूह के बारे में कि वो मर्द रास्तबाज अपने पूरे ख़ानदान के साथ उस कश्ती में आ गया। और कश्ती का दरवाज़ा किसने बंद किया था? जब पूरा ख़ानदान और वो जानवर जो खुदा ने, परिंदे जो खुदा ने कहे थे, कश्ती में दाखिल हो गए, तो कलाम बयान करता है कि खुदा ने बाहर से कुंडी लगा दी थी। अगर मैं और आप खुदा की नज़र में हैं, मुझे और आपको एक ही शख्सियत बचा सकती है, सेव कर सकती है, और वो कौन है? वो खुदा का बेटा यस्सु है। वो मेरा और आपका नजात दहिंदा है। जब हम उसके पास आ जाते हैं, हमारे गुनाह धुल जाते हैं, हम पाक और साफ किए जाते हैं, हम रास्तबाज बन जाते हैं, हम सच्चे बन जाते हैं, और फिर हमारे गुनाह जब धुल जाते हैं तो हम खुदा के साथ पाक ज़िंदगी बसर करते हैं। फिर खुदा की नज़र में आप पाक ठहरते हैं, आपका घराना पाक ठहरता है। मैं और आप अपने अपने ख़ानदानों पर गौर करें, अपनी अपनी ज़िंदगियों पर गौर करें, क्या हम खुदा की नज़र में हैं या नहीं? हमें इस बात के लिए जानने की ज़रूरत है। बहुत से ऐसे हवाला जात कलाम मुक़द्दस में हमें नज़र आते हैं। खुदा कलाम करता है। जोशुआ की किताब 24 बाब की 15 आयत जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पे बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। जोशुआ एक निडर लीडर था, मूसा का जानशीन था। मूसा ने उसे तैयार किया था कि मेरे बाद खुदा ने उसे कहा कि जोशुआ को मुकर्रर कर दे, और वो अपने ख़ानदान के बारे में बयान करता है, अपने घराने के बारे में बयान करता है। कलाम मुक़द्दस में लिखा है जोशुआ जिसको मूसा ने भेजा था, 12 जासूस भेजे थे, और उनमें से 2 ही थे जिन्होंने खुदा की आवाज़ पर आमीन कहा, जिन्होंने कलाम पर आमीन कहा और खुदा के की कही हुई बातों पर अमल करने के लिए कहा कि मेरा हम सब का खुदा हमारे साथ है और हम खुदा के फजल से फतह पाएंगे। और उनमें से वो 2 शख्स, एक जोशुआ और कालेब थे। और जोशुआ जो है ये अपने घराने के लिए ये बात कर रहा है जो कलाम मुक़द्दस में लिखी है, अब रही मेरी और मेरे घराने की बात, सो हम तो खुदावंद की परस्तिश करेंगे। खुदा की नज़र में जोशुआ का ख़ानदान था, खुदा उसकी मदद कर रहा था, खुदा उसे गाइड कर रहा था मूसा की तरह। जिस तरह खुदा मूसा को लीड करता रहा, गाइड करता रहा, इसी तरह खुदा जोशुआ को भी लीड कर रहा है। और फिर उसके बारे में लिखा है कि खुदा ने कहा जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही तेरे साथ भी रहूँगा। तू ना दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना, ना आगे जाना ना पीछे जाना, जब तक मैं ना कहूँ, और फिर मेरी मदद तुझे हासिल होगी। तो वही जोशुआ आज ये कह रहा है, अब रही मेरी और मेरे घराने की बात, तो हम तो सिर्फ़ और सिर्फ खुदावंद की परस्तिश करेंगे। क्या मैं और आप, हमारे घराने खुदावंद की परस्तिश करने वाले हैं? हमें नूह मर्द रास्तबाज की तरह बनना है।
जिसके बारे में खुदा ने कहा कि मैंने तुझी ही को इस दुनिया में रास्तबाज देखा है, तू और तेरा पूरा घराना आ जा, कश्ती में चला जा, मैं तुझे बचाऊंगा। और आज मैं और आप अगर इस दुनिया में मौजूद हैं तो वो नूह की बदौलत है। नूह को खुदा ने बचाया, नूह के बेटों को खुदा ने बचाया, और उससे जो नस्ल पैदा हुई उसमें से आज हम हैं। क्या हम इस बात पर ईमान रखते हैं? खुदा तरस नस्ल को इसलिए पैदा करता है कि वो उसकी हम्दो सना करे, वो उसकी इबादत करे, वो उसकी परस्तश करे। और जोशुआ कहता है कि अब रही मेरी और मेरे घराने की बात, हम तो सिर्फ और सिर्फ जिंदा खुदा की परस्तश करेंगे। तो कितने घराने हैं जो खुदा की परस्तश करते हैं? हम सब जिंदा खुदा को मानने वाले लोग हैं और हम सब जिंदा खुदा की परस्तश करते हैं। ये खुदा की मोहब्बत ही तो है जो हमें यहाँ पर खींच लाई। बहुत से लोग अपने अपने घरों में सोए हुए हैं, करवटें बदल रहे हैं अपने अपने बिस्तरों पर, अपने अपने बेड पर, लेकिन खुदा की मोहब्बत हमें खींच लाई कि हम यहाँ पर आकर खुदा की परस्तश करें, खुदा की इबादत करें और खुदा के नाम को इज्जत और जलाल दें। और हम कह सकते हैं कि अब रही हमारी और हमारे घरानों की बात, तो हम सिर्फ और सिर्फ खुदा की परस्तश करेंगे। कितनी खूबसूरत बात है। हमारी बहन ने पढ़ा है रोमियों के ख़त में से 16 बाब की 3 और 4 आयत में, वहाँ पे मेरे साथ हवाला निकाल लीजिए। खुदा के कलाम में यूँ लिखा है, परसिका और अक्विला से मेरा सलाम कहो, वो मसीह यस्सु में मेरे हम खिदमत हैं। उन्होंने मेरी जान के लिए अपना सर दे रखा था, और सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि गैर कौमों की सब कलीसियाएँ भी उनकी शुक्रगुजार हैं, और उस कलीसिया से भी सलाम कहो जो उनके घर में है। परसिकला के नाम से भी कलाम मुकद्दस में लिखा गया है। अक्विला और परसिकला एक ऐसा घराना, एक मियाँ बीवी, एक मॉडल ख़ानदान हमें नज़र आता है। इनके बारे में लिखा है कि जब सन 49 में रूमी शहनशाह ने यहूदियों को रोम में से निकाल डाला, तो ये घराना जो था परसिकला और अक्विला, ये भी उस जद में आ गए और फिर इनको कुरिन्थुस में भेज दिया गया। वह ये यहूदी घराने से तल्लक रखते हैं, और जब इन्होंने खुदा के कलाम को सुना और पौलुस के साथ इनकी रफाकत हुई, तो फिर ये दोनों मियाँ बीवी बदल गए। और इनके बारे में लिखा हुआ है, जब अपुल्लोस से इन्होंने कलाम सुना तो इतना ये कलाम में की समझ बूझ इनको आ गई थी पौलुस के साथ रहते हुए। तो फिर अपुल्लोस ने जब कलाम किया तो उनको ये समझ आई कि सिर्फ ये यूहन्ना इस्तबागी के बारे में ही जानता है, यीशु मसीह के बारे में इसको इतनी ज़्यादा समझ नहीं है। तो फिर परसिकला ने और अक्विला, ये दोनों मियाँ बीवी, इन्होंने यीशु मसीह के जी उठने, मरने और फिर उसकी ज़िंदगी के बारे में जब ये सारा कुछ बताया तो उसमें और निखार आ गया। हालांकि वो एक मजहबी रहनुमा था, वो एक उस्ताद था, पढ़ा लिखा शख्स था, लेकिन इनकी रहनुमाई करने से वो और ज़्यादा खुदावंद में मसरूर हो गया, और ज़्यादा परफेक्ट बन गया। और फिर वो जब रवानगी के साथ कलाम करता तो बहुत से लोग मसीह यस्सु को कबूल करते, और इन्होंने मसीह लोगों के लिए और उन लोगों के लिए जो मसीह को कबूल करते हैं अपना घर खोल रखा था। और फिर इस ख़ानदान के वसीले बहुत से लोग मसीह को कबूल करते थे, और पौलुस के साथ इनकी बहुत ज़्यादा रफाकत रहती। और हम इनके बारे में पढ़ते हैं कि बहुत से लोग इस जोड़े की वसातत से, इस ख़ानदान की वसातत से यीशु मसीह को कबूल करते हैं। और कुरिन्थुस की कलीसिया के बारे में उस किताब में भी लिखा है
फिर रोमियो के ख़त में लिखा है, फिर तिमोथियस के ख़त में भी लिखा है, इनका जिक्र है, अमाल 18 बाब में इस जोड़े का जिक्र है। तो हम कलाम मुक़द्दस में से एक ईमानदार घराना जो देखते हैं कि इनके वसीले बहुत से लोगों ने यीशु मसीह को कबूल किया और उसे अपना शख्सी नजात दहिंदा माना। हमें कलाम मुक़द्दस में बहुत से ऐसे घराने नज़र आते हैं, ऐसे ख़ानदान नज़र आते हैं जो खुदा की नज़र में हैं, और आज ये कलाम में इनका नाम दर्ज कर दिया गया है। बहुत से हवाला जात में ये दोनों मियाँ बीवी नज़र आते हैं। क्या मैं और आप, मेरा और आपका घराना ऐसा है कि हम परसिकला और अक्विला की तरह लोगों को अपने घर में बिठाकर कलाम सुनाते हैं? और कितने लोग हैं जो आपके घराने के वसीले यीशु मसीह को कबूल करते हैं? खुदा ने हमें इसलिए चुना है, खुदा ने हमें मुकर्रर किया है। कलाम सुनाना सिर्फ़ और सिर्फ खादिमों का काम नहीं है। बेशक खुदा के खादिम कलाम सुनाते हैं, लेकिन ये हम सब की ज़िम्मेदारी है। जब यीशु मसीह आसमान पर गए तो उन्होंने कहा कि सारी खलक के सामने जाकर इंजील की मुनादी करो, उन्हें बाप और बेटे और रूल कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तो ये जो ड्यूटी है ये मेरी और आपकी, हम सब की, जो ईमानदार हैं, जो यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं, ये उनकी भी जिम्मेदारी है। एक ऐसा जोड़ा हमें कलाम मुक़द्दस में नज़र आता है कि उन्होंने अपने घर को खोल दिया और बहुत से लोग उनकी वसातत से यीशु मसीह को कबूल करते हैं। कि मैं और आप खुदा के उन लोगों को जो फर्जी और नामी मसीह हैं खुदा के पास लाते हैं, ला रहे हैं। मेरी और आपकी कितनी काविश है कि हम सिर्फ चर्च आते हैं और आकर चले जाते हैं। मेरी और आपकी सिर्फ यही ड्यूटी है? नहीं, एक अच्छा और मॉडल ख़ानदान हमें कलाम मुक़द्दस में मियाँ बीवी की शक्ल में नज़र आता है, जिन्होंने बहुत से लोगों को खुदा का कलाम सुनाया, और वो खैमा दोज़ी का काम करते थे। पौलुस ने उनके साथ काम किया, रफ़ाकत रखी। जब हम अच्छे लोगों के साथ बैठेंगे, अच्छे लोगों के साथ हमारी रफ़ाकत होगी, तो हम भी अच्छे बनते जाएंगे, और उनकी खूबियाँ, अच्छे लोगों की खूबियाँ हमारे अंदर भी आती जाएंगी, और हम भी वैसे ही बनते जाएंगे जैसे अच्छे लोग हैं। तो हमें अपने अपने घरानों की तरफ निगाह करनी है। क्या मेरा और आपका घराना खुदा की नज़र में है? हमें इस बात को जानने की ज़रूरत है। जब हम ऐसा करेंगे तो खुदा फिर मुझे और आपको बरकत देगा, खुदा हमें संभालेगा। खुदा ने इंसान को इसलिए बरकत दी थी कि वो फले बड़े और ज़मीन को मामूरो महकूम करे। तो हमें भी घराने का सरबराह होते हुए सबसे ज़्यादा जो पूछगछ होगी वो घराने के सरबराह से होगी, और फिर उसके बाद उसके जीवन साथी से होगी कि आपने मेरे कलाम की बातें अपने बच्चों में ट्रांसफ़र की हैं या नहीं। और आज अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हम मसीही तो हैं, लेकिन हम ना तो खुद इस कलाम पर अमल करते हैं और ना अपने बच्चों को इस कलाम के लिए बताते हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो इस कलाम से दूर हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो इस कलाम के साथ खड़े हैं और इस खिदमत को बड़ी ईमानदारी से सर अंजाम दे रहे हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो फर्जी और नामी मसीह हैं, और खुदा उनसे हिसाब लेगा। मेरी और आपकी ड्यूटी है, मेरा और आपका ये फ़र्ज़ है कि हम अपने अपने घरानों की तरफ निगाह करें, अपने बच्चों की तरफ निगाह करें और उन्हें इस कलाम की तरफ लेकर आएं, खुदा की तरफ लेकर आएं, क्योंकि खुदा आसमान से
مجھے اور آپ کو دیکھ رہا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اور ہمیں یہ جاننا ہے کیا میں اور میرا خاندان خدا کے ساتھ چل رہے ہیں۔ میں اور میرا خاندان اپنے لوگوں کے لیے اچھا نمونہ ہمیں بننا ہے۔ اپنے اپنے خاندانوں کی طرف نگاہ ڈالیں، کہیں کوئی گڑبڑ تو نہیں ہے، پرابلم تو نہیں ہے۔ سوچئے اور اپنے خاندان کو بری باتوں سے اور ابلیس کے حملوں سے بچائیں، کیونکہ خدا آپ کے گھرانے پر نگاہ کرتا ہے۔ خدا نے نوح کے بارے میں یہ کہا، خدا نے آدم اور حوا کو یہ برکت دی، خدا نے جب جوشوا کو برکت دی تو اس نے کہا کہ اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات۔ پر سکلا اور اس کی بیوی کی طرف دیکھیں، ہمیں یہ جاننا ہے، ہم اچھے نمونے اپنی زندگی میں لیں۔ کلام مقدس اس بات کے لیے بھرا پڑا ہے، اور جب خدا مجھ سے اور آپ سے کہے کہ میں آپ کے گھرانے کی طرف نگاہ کر رہا ہوں، آپ میری نظر میں ہیں، ہمیں اس بات کو جاننا ہے۔ میں چاہوں گا ہم سب اپنے قدموں پہ کھڑے ہوں، اپنے اپنے خاندانوں کو خدا کے سامنے لے کر آئیں، اپنی آنکھوں کو بند کیجئے۔